start this part by giving a brief introduction about the various phases of compiler. So if we talk about compiler phases, then we say compiler goes through a number of phases. The very first phase is when you write a program in any of the programming language. It may be in C, C++, it may be in Java. You simply write a code in your in a language that is understandable to you as well as understandable to computer a bit. Fine. So firstly, during the first phase, the program is broken down into number of phases. Okay? So what happens in that case? The program is being input to the compiler, and then in that compiler phases, the program is divided into small tokens. Fine. That is your lexical analysis phase. Once the lexical analysis has been done, then the query goes through the syntax analysis phases. What happens in syntax analysis? Nothing. It simply understand, make a syntax tree for your query, for your program. तो जो आपका ट्री बन जाएगा उस ट्री के अकॉर्डिंग क्या होता है वो इट विल चेक फॉर एरर्स, क्योंकि वो मैचिंग करता है अपने डेटाबेस के साथ. तो जब वो अपने डेटाबेस से कंपैरिजन करेगा, इट में फाइंड के इसमें ये सिंटैक्स इसके अकॉर्डिंग देयर मे बी सम असाइनमेंट इशू, दिस इज अ वैलिड असाइनमेंट स्टेटमेंट, और देयर मे बी सर्टेन सिंटैक्स एरर. तो जो भी हमारी एरर्स होती हैं वो एरर्स आपकी नोटिफाई कर दी जाती हैं. फाइन. तो उस केस में आपका जो कंपाइलर होता है इट थ्रोज एरर्स टू यू. तो आपका सिंटैक्स एनालिसिस हो जाए या सिमेंटेक्स एनालिसिस हो जाए, उसमें हमारे पास सिंटैक्स ट्रीज एंड पार्स ट्रीज क्रिएट होते हैं. तो जो सिंटैक्स ट्री एंड पार्स ट्री हमारा क्रिएट होता है, उसके बाद में जो आपका वेरी नेक्स्ट फेज होता है, उसमें आप क्वेरी को, अपने प्रोग्राम को यू ऑप्टिमाइज इट. हाउ यू ऑप्टिमाइज? एनी स्टूडेंट, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू ऑप्टिमाइज द प्रोग्राम? यस, साक्षी, can you tell me how to optimize C++ program? Sorry ma'am, don't know. Okay, any other student? Anchal, Kamal, Monica? No one? No idea. Beta, this is very easy. Yeah, this is one of the easiest question that you studied in system programming. Okay, let me tell you. You create a matrix in that. Fine. Just if the two entries in the matrix are same, like there is written equal to A plus B, equal to C plus D. What is happening in that case? This is simply assignment statement that you are assigning some values to another value. ठीक है? So valid assignment statement matrix में double entries आ गई. और there may be arithmetic statement like there is written plus AB. फिर matrix में there is one more entry that says plus AB. Then what is happening in that case? That is duplicacy. फाइन. तो जब वो डुप्लीकेसी हमारे पास होती है, इट शोज कि आपके पास ये स्टेटमेंट सेम टाइम कंपाइलर 2 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा. तो इट मीन्स यू आर वेस्टिंग द सीपीयू साइकिल ट्वाइस. जो चीज आपके सिंगल ऑपरेशन में होगा, सिंगल ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म 2 टाइम्स. देन व्हाट हैपेंस इन दैट केस? अगर जो उसका रिजल्ट है दैट इज बीइंग रेफर्ड एट सम अदर प्लेस, तो एक एंट्री उनमें से रिमूव कर देता है आपका कंपाइलर. फाइन. सो दैट इज द वर्किंग ऑफ अ कंपाइलर इन एनी ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका मेन टास्क क्या होता है कि टेक द क्वेरी, डिवाइडेड इनटू टोकन्स, रिमूव द एरर्स, ऑप्टिमाइज द प्रोग्राम. After optimize, generate the intermediate code. After generating intermediate code, the final code is generated. That is your 01 machine language code. और whenever we are talking about compiler phases, तो उसमें जो intermediate होता है, तो जो वो आपका intermediate है, that is your assembler. ठीक है? So that was about compiler. Now we will switch to a SQL query. So whenever we are talking about SQL query, first of all we need to know what is query. So if we talk about what is query, then in simple terms, I can say a query, a database query is a vehicle for instructing a DBMS to update or retrieve specific data to or from physical stored media. Then it simply means कि आपकी कोई भी database की query है, वो just like एक vehicle है जो आपको drive करके एक result point तक लेके जा रहा है. So we say कि आपकी जो क्वेरी होगी वो डेटाबेस में अपडेट होनी है, कुछ स्पेसिफिक डेटा आपने रिट्रीव करना है. ठीक है? जो फिजिकली मीडिया पे स्टोर्ड है, तो वो आपके क्वेरी है, दैट विल बी ड्राइविंग दैट. नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट क्वेरी प्रोसेसिंग, क्वेरी प्रोसेसिंग इज नथिंग एल्स, इट मींस यू आर ड्राइविंग दैट व्हीकल. नाउ यू आर अ ड्राइवर ऑफ दैट व्हीकल. क्वेरी वाज अ व्हीकल, सो एंड नाउ यू आर ड्राइवर फॉर दैट.
तो आप उसको ड्राइव करके अपने एक पॉइंट लोकेशन तक लेके जा रहे हो. सो दैट इज हैपनिंग इन क्वेरी प्रोसेसिंग कि आपकी जो क्वेरी है यू आर ड्राइविंग दैट टू रिट्रीव द डेटा. Now, if we talk about phases of query processing, they are similar to your compiler phases. तो first phase says, जैसे हमारे पास lexical analysis होता है, here we are having query decomposition. So the input query is query in high level language, that is your SQL query. Simple आपकी structure language की जो query होती है वो as an input आप pass करते हो query decomposition phase को. Now your query decomposition phase can also be called as lexical phase in any high level programming language. तो जैसे आपका lexical analysis का phase होता है वो आपका query optimization decomposition का जो phase होगा, your query is broken into स्मॉलर पार्ट्स. आपकी क्वेरी को आप ब्रेक कर देते हो स्मॉल पार्ट्स में, और जब आप उसको ब्रेक कर रहे हो उसी टाइम पे यू आर रिमूविंग द एरर्स फ्रॉम दैट. जस्ट लाइक आपकी जो कंपाइलर एरर्स होती है दैट आर शोन टू यू कि आपके प्रोग्राम में दीज आर द एरर्स, देयर मे बी सिंटैक्स एरर और व्हाटएवर एरर इज देयर दैट इज बीइंग पॉइंटेड आउट. तो सिमिलरली आपकी क्वेरी डिकम्पोजिशन फेज में भी आपकी जो क्वेरी होगी उसको डिकम्पोज करके स्मॉलर पार्ट्स में उसकी क्वेरी के एरर थ्रो आउट किया जाएगा. नाउ it needs system catalog. Obviously it is needed, क्योंकि अगर कोई कंपाइलर है या कोई भी ट्रांसलेटर है उसको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेरी का सिंटैक्स करेक्ट है या नहीं है. तो ऑब्वियसली इट विल बी रेफरिंग सर्टेन डाटाबेस, इनबिल्ट स्टोर डाटाबेस. तो दैट इज नोन एज सिस्टम कैटालॉग. तो जो आपका सिस्टम कैटालॉग होता है उस सिस्टम कैटालॉग के साथ आपका जो क्वेरी प्रोसेसर होगा वो कंपेयर करके देखेगा कि आपके पास उसमें क्या एरर्स है. तो वो आपके पास अगर मैच नहीं करता देन इट विल डिक्लेयर इट एज अ सिंटैक्स एरर. आफ्टर दैट क्वेरी डिकम्पोजिशन फेज वी से हमारे पास जो आउटपुट आएगा दैट इज रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन. जैसे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट C++ और जावा देन व्हाट इज हैपनिंग इन दैट केस कि योर जावा प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम. So in this case your SQL query will be converted into relational algebra expression. So relational algebra is intermediate. जब हमने डिस्कस किया था ना रिलेशनल अलजेब्रा का, देन एट दैट टाइम वी डिस्कस्ड कि हमारे पास जो क्वेरी होगी जो रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन होती है या रिलेशनल अलजेब्रा लैंग्वेज होती है वो हमारी एक कोर लैंग्वेज है जो सीक्वल के लिए फाउंडेशन फॉर्म करेगी. सो सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट कि रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन इज देयर जो हमारे पास इंटरमीडिएट उसमें फाइंड आउट करेगा. आफ्टर दैट वी हैव क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन. Now, once your query is converted into relational algebra, next task is to optimize the query. Now, your Oracle-like software has inbuilt query optimizers. Now, what is the task of query optimizer? अगर हमारे पास एक query है, there are multiple solutions. Like if we say कि I have to go from Khanna to Ludhiana, there are a number of paths. ठीक है? देन ऑल दोज पाथ्स जो आपको खन्ना से लुधियाना लेके जाएंगे चाहे जिस रूट को मर्जी आप फॉलो करो ऑल आर फिजिबल. ठीक है, बट फ्रॉम दोज फिजिबल वी चूज वन ऑप्टिमल सोल्यूशन. ठीक है, तो जो आपको दैट इज नोन एज ऑप्टिमल सोल्यूशन. तो सिमिलरली इफ वी आर राइटिंग अ क्वेरी तो उस क्वेरी के लिए बहुत से एग्जीक्यूशन प्लान्स हो सकते हैं. द क्वेरी कैन बी रिटन इन अ नंबर ऑफ वेज. So all are driving to the correct result. It means all those are feasible queries. But from those feasible queries, we have to choose the optimal one. And what is that optimal one? The query that has lesser cost, least cost. जब query optimize होती है, execute होती है, तो उसको कोई cost लगेगी. Obviously, you are fetching the data from the storage media. तो जब आप query को fetch कर रहे हो, you are using the CPU utilization cycles. तो उस टाइम पे इफ यू आर डूइंग दैट फेचिंग तो वो जो आपकी फेचिंग हो रही है दैट इज नोन एज वन सीपीयू साइकिल. रीड राइट साइकिल्स आपकी क्वेरी के हो गए, दे ऑल आर काउंटेड टुवर्ड्स द कॉस्ट. वी विल डिस्कस दैट फैक्टर इन डिटेल ऑल्सो. So whenever we are talking about query optimization, you have to decide ki which is the optimized query. How will you decide? Any student having any idea? Anyone? Now I have to decide my this path is the optimal one. How will you decide? अगर मुझे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है एक से शॉर्टेस्ट वो फिर तो बेटा आपको कैसे पता चलेगा कि वो शॉर्टेस्ट है? माय क्वेश्चन इज आपको कैसे पता चलेगा? एल्गोरिथम्स यूज करके स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं.
अब वो आप पाथ की बात कर रहे हो, अब आप ना टेक्निकल लैंग्वेज से बाहर आ जाओ, जनरल में मुझे बताओ। तो ऑब्वियसली आपके पास पहले, बेटा डोंट स्पीक टेक्निकली, जस्ट गिव मी आंसर इन सिंपल प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, अब मुझे ये मेरा सिंपल क्वेश्चन है, मुझे खन्ना से लुधियाना जाना है, मेरे पास 10 रास्ते हैं जाने के, मैं किसी एक को चूज करूंगी जो मेरे को लगा ऑप्टिमल है। मैम मैप मैप पे चेक करेंगे, जो सबसे कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा हम उसी को चूज करेंगे। सो यू कैन सिंपली से कि आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब मैप में भी अगर किलोमीटर्स लिखे हुए हैं या वट एवर इज बिंग रिटन, तो वो डेटाबेस के कोई स्टैटिस्टिक्स है ना, जो पहले हो चुकी है, जो चीज किसी ने मेजर किया होगा ना वो पाथ, सो दैट इज नोन एज डेटाबेस स्टैटिस्टिक्स। के डेटाबेस के जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें वो एंट्रीज होती है पहले, वहां से आप उन स्टैटिस्टिक्स के बेस पे आप डिसीजन लेते हो कि कौन सा पाथ हमारा ऑप्टिमल आया। ठीक है, तो उस क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग यू हैव एग्जीक्यूशन प्लान। तो एग्जीक्यूशन प्लान कौन सा आएगा जिसको आपने चूज किया, दैट यू हैव सेड कि दिस वन इज माय ऑप्टिमल वन। आफ्टर दैट जब आपको एग्जीक्यूशन बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान यू हैव गॉट, देन यू हैव टू जनरेट द कोड फॉर दैट क्वेरी। नाउ व्हिच वन इज दिस कोड? वी हैव ऑलरेडी गॉट रिलेशनल अलजेब्रा कोड। After from that relational algebra, you have to switch to the machine language code. So this is code generation phase जो हमारे पास आपको machine language code generate करके देगा, that is 0 1s। अब हमारे पास वो कोड आ गया जो हमारा मशीन का कोड है 0 1, जिसको हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। So if we talk about first 3 phases, that is query decomposition, query optimization, code generation, then it means we are talking about the compile time। और जब हमारा कोड जनरेट हो गया उसके बाद वी आर फेचिंग द डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, और वो डेटाबेस की जो इंटरेक्शन होगी दैट इज एट फिजिकल लेवल। हमने डिस्कस किया था कि अ क्वेरी डेटाबेस गोज थ्रू 3 लेवल्स, ठीक है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड कॉन्सेप्चुअल। तो अगर एक्सटर्नल लेवल है दैट इज एट द दिस लेवल जहां पे आपकी SQL क्वेरी थी, then this part is your logical level, conceptual level, and this is the interaction with the physical level। We said कि physical level के साथ कभी भी no DBA or no database developer is interacting directly। So in that case, if we have to interact with the database, it means we need certain physical media, physical language। तो उस केस में जो क्वेरी 0 1s की कोड में रन हो रही है दैट इज एट रन टाइम क्वेरी एग्जीक्यूशन, दैट इज इंटरेक्टिंग विद द मेन डेटाबेस, यहाँ से हमारी क्वेरी की आउटपुट आएगी। सो व्हेनेवर वी आर राइटिंग एनी क्वेरी, तो दिस क्वेरी गोज थ्रू दीज नंबर ऑफ फेसेस, ये सारे हमारे फेसेस होंगे जिनके थ्रू हमारी क्वेरी चलेगी। और हमारा मेजर रोल क्या होगा क्वेरी प्रोसेसिंग का, इज टू ट्रांसफॉर्म द क्वेरी that is written in high level language into a correct efficient execution strategy। Fine, so now if we discuss about these points in detail, then if we talk about query decomposition, that is similar to your lexical analysis phase, then we said this query is going through a multiple phases again। Query decomposition phase itself consists of a number of phases। So basically the aim of the query decomposition is simply to transform a high level query into relational algebra and to check that the query is syntactically and semantically correct। It means there is no syntax error, there is no semantic error, whichever statement we have written is correct according to our knowledge। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू DBMS नॉलेज। तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, एनालिसिस फेज परफॉर्म होगा। सो व्हाट इज हैपनिंग इन एनालिसिस, इट सिंपली सेज एनालाइज द क्वेरी यूजिंग कंपाइलर टेक्निक्स। ठीक है, तो आपने जो क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, आप सबसे पहले उसको कंपाइलर टेक्निक्स को यूज करके एनालाइज करोगे। देन वी चेक कि जो हमारे पास रिलेशंस हैं और एट्रीब्यूट्स हैं वो वैलिड है और एग्जिस्ट करते हैं। नाउ सपोज वी हैव रिटन अ क्वेरी, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, इट मीन्स इन दैट वी हैव 2 attributes, one is student name, another attributes is department name of the student। After that we are saying कि we are using we are retrieving the data from the student relation। So whenever we are doing that, it means we have to check student relation should exist in the DBMS। So firstly we say verify the relations के relation exist करते हैं। So we are checking के relation student exist। आफ्टर दैट वी आर चेकिंग के एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं। सो वी चेक के एट्रीब्यूट्स हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम एंड डिपार्टमेंट नेम एट्रीब्यूट्स आर एग्जिस्टिंग। फाइन, जब हमारे ये चीज चेक होगी, आफ्टर दैट वी विल चेक वेरीफाई द ऑपरेशंस आर एप्रोप्रिएट फॉर ऑब्जेक्ट टाइप,
कि जो हमने ऑब्जेक्ट टाइप है उसके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप्स आर एप्रोप्रिएट. नाउ सपोज आई हैव रिटन कि स्टूडेंट नेम इक्वल टू 1 2 3. अब हमारे पास जो स्टूडेंट टेब था, सॉरी कॉलम था, जब वट एवर यू कॉल इट, यू कैन कॉल इट एट्रीब्यूट ऑल्सो. सो वी सेट कि उसकी जो वैल्यू है दैट इज करेक्टर. फाइन. तो अगर आप उसको जो वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हो कंडीशन में, वो आप इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं स्पेसिफाई कर रहे हो, देन इट मीन्स यू आर डूइंग इट रॉन्ग वे, बिकॉज करेक्टर वैल्यू शुड बी रिटन इन इन्वर्टेड कॉमर्स ओनली. ब्रेक हो रही है मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक. मैम यस मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. Hello, is it okay now? Yes, is it okay? Yes, ma'am. Okay, fine, thank you. Okay beta. So here what we are doing, we are saying कि आपने चेक कर लिया कि जो रिलेशनशिप, जो ऑपरेटर आप परफॉर्म कर रहे हो एट्रीब्यूट को, इट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स डाटा टाइप ऑल्सो. ऑब्जेक्ट जो आप डिफाइन कर रहे हो, अगर वो वेयर केयर है, यू शुड हैव स्पेसिफाइड इन इन्वर्टेड कॉमर्स. अगर वो नंबर है, इंटीजर है, यू शुड हैव स्पेसिफाइड विदाउट यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स. फाइन. Once that is done, next task is to transform the query into some internal representation. Now this internal representation is your relational algebra representation. So whenever we are doing this, we have done the completion of analysis of relational algebra tree. So we will construct a relational algebra tree in this case. What we need to do? How we create a relational algebra tree? For that we will create a leaf node is created for each base relation. So first task is identify the number of relations that are being used. For all those relation, create a leaf node. ठीक है. आफ्टर दैट क्रिएट अ नॉन लीफ नोड. नॉन लीफ नोड किसके लिए क्रिएट करोगे? इज क्रिएटेड फॉर ऑल इंटरमीडिएट रिलेशन. जो भी आपके पास इंटरमीडिएट रिलेशन है, जो रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन में परफॉर्म हो रहा है, उसके लिए रिलेशनल अलजेब्रा के लिए आप एक नॉन लीफ नोड क्रिएट करोगे. आफ्टर दैट रूट ऑफ द ट्री आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्ट ऑफ द क्वेरी. तो अगर आप रिट्रीव कर रहे हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किसी पर्टिकुलर टेबल नेम, तो जो आपका स्टार है दैट इज स्पेसिफाइंग कि ऑल द कॉलम्स ऑफ अ टेबल, तो इट दैट इज आइडेंटिफाइड एज द रूट, तो वो आपके पास रूट में आ जाएगा. आफ्टर दैट सीक्वेंस इज डायरेक्टर फ्रॉम लीव्स टू रूट. तो जो आपने सीक्वेंस है वो आप लीव से लेकर स्टार्ट को करोगे. सो लेट मी शो यू पीपीटी फॉर दिस ऑल्सो, अबाउट दिस, a brief description to this also. So we can I have shown you two diagrams. One was in handwritten note, that is also okay. This is one more refined diagram as per book given in the book of DVMS by Korth. So according to that book, this diagram is also valid. You can go with this also. So according to that, we are having these phases in query processing, that is parsing and translation, optimization and evaluation. So whenever we are talking about parsing and translation, it means we are decomposing the query, and when we are decomposing the query, we are removing all type of syntax errors, and after removing all type of syntax error, we are converting it into relational algebra query. That is the output of parsing and translation phase. So firstly, whenever the query will be given as input, this query is your SQL query, and that SQL query is being passed to as a parser and translator. ठीक है. Parser and translator, what will be the output of parser and translator? It will be simply a relational algebra expression. So this parser and translator is a part of query decomposition. ठीक है. Fine. Then we get relational algebra query, and from that relational algebra query we will switch to the optimizer. What is the task of optimizer? To optimize the query. That is, if we are getting a number of execution plan, all those plans are driving towards the correct result. From those plans, we will pick the best one plan, and that is the feasible one, sorry, optimal one. So for optimizing the query, to check which one is the optimized query, we have to refer to the database statistics. So this is the database statistics in this case. From that, we will get one execution plan, that is the optimized one. And that execution plan is having the least cost for the query.
Then from that we will go to the evaluation engine that is being happening at the रन टाइम, नॉट एट द कंपाइल टाइम. तो मशीन लैंग्वेज में जो आपकी क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो रही है और जो वो आपको इंटरेक्ट करी है डीबीएमएस के साथ, एंड फ्रॉम दैट फिजिकल स्टोरेज मीडिया वी विल गेट द क्वेरी output in this case. And then after that now if what are the these phases we have already discussed in query decomposition, that is it says translate the query into some internal representation, and this internal representation can also be known as relational algebra. And then here the parser will check for the syntax and it verifies the relations. After that evaluation is being done, that says the query execution engine takes a query evaluation plan and executes that plan and return the answers to the query in that case. Now whenever we are performing the query optimization, we have to look at an example. I am showing you one example for that. So have a look at this query. What is this query? This query is written in a relational algebra language expression, and there we have multiple equivalent expressions for this query. So have a look at this. It says a sigma salary less than 75,000. What does it mean? It means we are retrieving the records where salary is less than 75,000. So sigma is your where condition, which says कि यहाँ पे आप जो salary है वो less than 75,000 है, and pi salary means we are displaying the salary of all those employees or instructors or whatever you are considering. And we have written here pi and we are retrieving this from instructor table. So the query says sigma salary less than 75,000, and inside the round brackets we have written pi salary from instructor. And this can also be written in this way also, in the second way, which says कि जो where condition है shift it inside, और जो selection condition थी हमारी projection है move it outside the brackets. So that is this which says pi salary sigma salary less than 75,000. So this same query can be written in two ways. So if we talk about these two ways, the output will be same, but the cost of query will be different. We will do this when we will calculate the cost of these queries. So here we says that each relational algebra operation can be evaluated using any of one of the several different algorithms. Number of algorithms are available, number of execution plans are available. We choose the best evaluation plan. So we can say correspondingly a relational algebra expression can be evaluated many ways. तो आपके पास बहुत से ways हैं जिनके यूज करके आप relational algebra की query को execute कर रहे हो. Now we say कि annotated expression specifying the relational algebra strategy is called the evaluation plan. In this case we says it can use an index on salary which says कि आपने जो salary column है इस पे कोई condition लगाई है और इस salary column पे कोई index है. तो अगर इस पे इंडेक्स होगा तो ऑब्वियसली जो आपकी सर्च होगी वो फास्टर होगी. ठीक है. और वी कैन ऑल्सो से वी कैन परफॉर्म कंप्लीट रिलेशन स्कैन, पूरे के पूरे टेबल को स्कैन कर लो, उसके बाद आपके ने कंडीशन लगाई है कि सैलरी ग्रेटर देन 75,000. सो डू यू हैव टू वेज. वन इज आपके पास सैलरी कॉलम पे इंडेक्स क्रिएटेड है, और अगर आपके पास उस पे इंडेक्स क्रिएटेड है तो उस केस में व्हाट यू आर डूइंग कि आपकी क्वेरी फास्टर है, आप इंडेक्स बेस्ड सर्चिंग कर रहे हो. सेकंड वे क्या है, आप उस इंडेक्स को रेफर नहीं कर रहे हो, आप पूरे के पूरे टेबल को स्कैन कर रहे हो, और जब आप उस टेबल को स्कैन कर रहे हो उस टाइम पे आप चेक कर रहे हो कि आपके पास क्या रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो रहे हैं. फाइन. सो let us switch to our notes again. I have a number of examples in that. Fine. So when we have done this analysis phase, we do normalization. And what this is normalization, it can be done in two ways, CNF and DNF. Only two forms होती है हमारे पास SQL में normalization की. One is conjunctive normal form and this one is another one is disjunctive normal form. So whenever we are talking about CNF, it means we are talking about and. Conjunction क्या होती है हमारे पास? And. ठीक है. तो conjunctive normal form says conjunction of disjunctions.
It simply means conjunction of disjunctions, that is and of ors, एंड ऑफ ऑर्स. ठीक है, गॉट दिस पॉइंट कि हमारे पास जो इनसाइड इंटरनल ब्रैकेट्स क्वेरीज होंगी दे आर कंजंक्शन बेस्ड, सॉरी डिसजंक्शन बेस्ड, और जो कॉमन उसमें है डिसजंक्शंस पे दैट इज कंजंक्शन, और डीएनएफ क्या होगी, रिवर्स ऑफ दैट. सो हैव अ लुक एट द एग्जांपल ऑफ दिस. It says a sequence of Boolean expressions connected by conjunctions. Each expression here contains terms of comparison operations connected by disjunction. So it says position, manager और salary greater than 2000. So हमारे पास यहाँ पे और condition है which says कि जिनकी position manager हो जहाँ salary greater than 20,000 हो. ठीक है, पर ब्रांच नेम दोनों के लिए V003 हो. क्वेश्चन इज कि ब्रांच नेम, ब्रांच नंबर जो है वो B003 ही होना चाहिए, सैलरी चाहे ग्रेटर देन 20,000 है, या फिर पोजीशन जो उनकी है वो मैनेजर है. इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो सकती है, बट ब्रांच नंबर शुड ऑलवेज बी B003. फाइन. So next, अगर if we have to write this using DNF, same equivalent query, then it will become like this. Position manager and branch name B003 or salary greater than 20,000 and branch is B003. So this query and this query are one and the same things. The only difference is here we have written CNF and here this we have done in DNF. So conjunctive normal form and disjunctive normal form. Got the idea of CNF and DNF or any confusion in this? Students got the idea? What is CNF and what is DNF? Yes, ma'am. This is easy to understand. Nothing is difficult in this case, but we need this. जब हम क्वेरी को ऑप्टिमाइज करते हैं, यू विल बी स्टडिंग अ फ्यू स्टेप्स और ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स. उस पे आपके पास आता है कि कन्वर्ट द क्वेरी इधर इन सीएनएफ और इन डीएनएफ, दोनों में से किसी में भी कन्वर्ट कर लो, क्योंकि इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ द क्वेरी. जब आप कोड को ऑप्टिमाइज कर रहे हो उसको उस पर डायरेक्टली अफेक्ट करेगा आपका. ठीक है, सो दिस इज द ट्री फॉर दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर दिस, विच सेज कि हमने सबसे पहले दोनों ब्रांच टेबल से रिट्रीव हो रहे हैं, तो हमने क्या रिट्रीव किया, वेयर पोजीशन मैनेजर एंड वी आर रिट्रीविंग वेयर ब्रांच सिटी लंदन. तो दोनों ये कंडीशन है, और उसके बाद आपने ज्वाइन यूज किया कि यहाँ पे ब्रांच नेम इक्वल टू बी ऑफ ब्रांच नेम है. सो दिस टाइप ऑफ रिलेशन ट्री कैन बी ड्रॉन. ठीक है, हमारे पास लीफ नोड में क्या आता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, टेबल जो यूज हो रहे हैं. इंटरमीडिएट पे क्या आता है, कोई भी रिलेशनल अलजेब्रा की जब हमने कंडीशन परफॉर्म करी है, और रूट में क्या आता है, जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास उनको कंबाइन करके आएगा. सो हियर वी आर परफॉर्मिंग सिमेंटिक एनालिसिस आल्सो. सो व्हेनेवर वी आर परफॉर्मिंग सिमेंटिक एनालिसिस, इट मींस वी आर चेकिंग फॉर द करेक्ट मीनिंग, कि हमारी जो क्वेरी है वो सिमेंटिकली करेक्ट हो. सिमेंटिकली करेक्ट का क्या मीनिंग होता है, कि वो स्टेटमेंट वैलिड हो, मीनिंगफुल हो. So if we have to check for that, we will check for two conditions. One is incorrectly formulated queries. So if we say we have to wind up with this, then we say कि incorrectly formulated queries are there and contradictory queries are there. Fine. So if we talk about this, then we say incorrectly formulated queries. So here we say कि जो आपके पास जो query है, if components don't contribute to the generation of the result, which may happen if some joint specifications are missing. ठीक है, so here we say कि अगर आपके पास multiple components हैं जो result को contribute नहीं करते हैं result formation पे, then we can skip those joins. ठीक है, उनको joins को हमें incorrectly formulated queries में डालना है. And if we talk about contradictory queries, it means एक दूसरे का बिल्कुल exactly opposite of that. Now we say position equal to manager, position manager हो जहाँ position assistant हो. Is it possible कि एक ही पर्सन है, उसकी पोजीशन मैनेजर है, उसी की पोजीशन वो असिस्टेंट लेवल पे है? इज इट पॉसिबल? नो मैम.
नॉट पॉसिबल ना, सो दिस इज नोन एज कॉन्ट्रडिक्शन। अगर यहाँ पे और होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन दैट केस वी आर सेइंग कि जहां पोजीशन मैनेजर हो, जहां पोजीशन असिस्टेंट हो, फाइन। तो बट अगर हम यहाँ पे एंड यूज करें, इट मीन्स वी आर सेइंग कि पोजीशन मैनेजर है एंड पोजीशन असिस्टेंट है, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा कि वी आर सेइंग कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है, क्वेरीज आर कॉन्ट्रडिक्टिंग। सो इफ any of these conditions are being happening in this case, it may be either contradictory or it may be incorrectly formulated queries। तो इन दोनों को हमें avoid करना है। so इसको हम check कैसे करेंगे? there is a method to check। now this is the method, it says relation, we can create relation connection graph। so if we are having relation connection graph, then it says if the graph is not connected, अगर हमारा graph connected नहीं है, so we say कि द क्वेरी इज इनकरेक्टली फॉर्मुलेटेड। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्टली हमें को रिलेशन कनेक्शन ग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब अब रिलेशन कनेक्शन ग्राफ इफ वी वांट टू क्रिएट, देन वी हैव अ फ्यू स्टेप्स टू फॉलो। फर्स्ट इज क्रिएट अ नोड फॉर ईच रिलेशन, हर एक रिलेशन के लिए और उसके रिजल्ट के लिए नोड्स क्रिएट कर लो। तो सबसे पहले क्या करोगे? आप क्वेरी को रीड करोगे। जब आप उस क्वेरी को रीड करोगे, उसमें जो भी नोड्स हैं, ठीक है, जो नोड्स हैं, जितने भी रिलेशंस हैं और जितने भी रिजल्ट्स हैं, सबके लिए आप नोड्स क्रिएट कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे? एजेस को क्रिएट करोगे बिटवीन दो टू नोड्स। अब एज कहाँ पे आएगा? वहां पे आएगा यहाँ पे कोई ज्वाइन होगा, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज जितने भी रिलेशंस हैं या जितने भी रिजल्ट्स हैं, सभी के लिए नोड्स क्रिएट कर लो। उसके बाद क्या होगा? उसमें आपके पास ये आ जाएगा कि जहां पे भी आपके पास ज्वाइन होगा, वहां पे आप क्या करोगे? एज क्रिएट करोगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करोगे? क्रिएट द एजेस बिटवीन द नोड्स दैट रिप्रेजेंट द सोर्स एंड ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेशन। फिर आप क्या करोगे? जो भी आपके पास एजेस है, यहाँ से कोई रिजल्ट ड्राइव हो रहा है, उनके लिए आप क्या करोगे? नोड्स क्रिएट करोगे। वी विल डू एग्जांपल ऑफ दिस रिलेशन कनेक्शन ग्राफ विद इन अ फ्यू मिनट्स। सो फर्स्टली अंडरस्टैंड कि इसमें स्टेप्स क्या हैं। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं? नॉर्मलाइज एट्रीब्यूट कनेक्शन ग्राफ होता है हमारे पास। व्हाट डज इट मीन? इट सेज इफ अ ग्राफ हैज अ साइकिल। अब जो हमने क्रिएट किया उसमें कोई अगर साइकिल है, फॉर विच द क्वेरी वैल्यूएशन सम इज नेगेटिव, जिसके लिए क्वेरी के जो सम है वो नेगेटिव है, तो हमारी क्वेरी क्या होती है? कॉन्ट्रडिक्टरी। तो जो रिलेशन कनेक्शन ग्राफ होता है, इट इज लिंक्ड विद इनकरेक्टली फॉर्मुलेटेड क्वेरीज, ठीक है। जो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड एट्रीब्यूट कनेक्शन ग्राफ होता है, इट इज रिलेटेड विद योर कॉन्ट्रडिक्टिव क्वेरीज। तो अगर हमारा रिलेशन कनेक्शन ग्राफ प्रॉपर नहीं बनता, तो हम बोलेंगे क्वेरी इनकरेक्टली फॉर्मुलेटेड है। अगर हमारे पास नॉर्मलाइज्ड एट्रीब्यूट कनेक्शन ग्राफ जो है, इसमें कोई साइकिल आ जाता है जिसका वेट नेगेटिव है, देन वी विल से द क्वेरी है जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। आई विल शो एग्जांपल ऑफ दिस आल्सो। So here we say whenever we are working on normalized attribute connection graph, we say कि if the graph has a cycle for which the valuation sum is negative, the query is known as contradictory queries. So we say create a node for each reference. हर एक reference के लिए हम एक node create करेंगे जो उस attribute को refer करती है। Then क्रिएट डायरेक्टेड एज बिटवीन नोड्स, उनके बीच में जो नोड्स है उनके बीच में हम डायरेक्टेड एज बनाएंगे। और वेन एवर वी आर क्रिएटिंग द डायरेक्टेड एज बिटवीन देन वी से इट शुड रिप्रेजेंट अ ज्वाइन बिटवीन एन एट्रीब्यूट एंड नोड, और जो आपके पास कांस्टेंट है 0, ठीक है। नाउ दिस इज द क्वेरी फॉर विच वी विल बी ड्राइविंग द टेस्ट। नाउ इस वी आर कंसिडरिंग द एग्जांपल विच से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टाफ एस। स्टाफ टेबल है, ठीक है। इस टेबल को हमने एक उसका इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, दैट इज नोन एज एस। देन फ्रॉम ब्रांच वी आर सिलेक्टिंग, फॉर दैट ब्रांच वी हैव यूज्ड एन इंस्टेंस बी, एंड वी सेड कि वेयर बी डॉट ब्रांच नंबर, सॉरी एस डॉट ब्रांच नंबर इक्वल टू बी डॉट ब्रांच नंबर, एंड एस डॉट पोजीशन इक्वल टू मैनेजर, एंड बी डॉट सिटी इक्वल टू London in this case. Now here we says 3 equivalent relational algebra queries are possible. Now have a look at this query. Firstly we will do T. Sorry, let me show this कि इसमें हमारे पास cost की example I told you कि cost कैसे affect कर रही है. After that we will discuss these two graphs.
ठीक है, लेट अस डिस्कस द कॉस्ट ऑफ द क्वेरी, हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है कि वी आर कंसीडरिंग द क्वेरी सेम, इसके लिए जो सीक्वल क्वेरी है इसके लिए आई एम राइटिंग 3 डिफरेंट क्वेरीज। फर्स्ट क्वेरी मैंने आई हैव यूज कार्टेशियन प्रोडक्ट, फाइन। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम चॉइस करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लिए इक्वालिटी ऑपरेटर हमें यूज करना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव टू रिट्रीव द रिजल्ट फ्रॉम 2 रिलेशंस, वन इज स्टाफ एंड अदर वन इज ब्रांच। तो हमारे पास क्या आ गया, स्टाफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ब्रांच आ गया। ठीक है, इसमें से आप क्या कंडीशन क्या होगी कॉमन कॉलम पे। सो वी आर सेइंग स्टाफ डॉट ब्रांच नंबर इक्वल टू ब्रांच डॉट ब्रांच नंबर। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, यहाँ पे पोजीशन मैनेजर है और सिटी लंदन है। सो वी आर सेइंग कि हम वो सारे एम्प्लॉयज का रिजल्ट रिट्रीव कर रहे हैं जिनकी पोजीशन मैनेजर है, ठीक है, एंड सिटी लंदन है, और स्टाफ और जो उनका स्टाफ एंड ब्रांच का रिलेशन है उसके कॉमन कॉलम कौन सा है, ब्रांच, उसकी कंडीशन। दिस इज द फर्स्ट वे टू राइट द क्वेरी। नाउ सेकेंड वे टू राइट द सेम क्वेरी इज, इसमें हम यूज कर लेते हैं ज्वाइन को। सो व्हेन वी आर यूजिंग ज्वाइन वी राइट द क्वेरी इन दिस वे, स्टाफ एंड ब्रांच का ज्वाइन। तो जब हम स्टाफ एंड ब्रांच को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे पास जो हमारी सबस्क्रिप्ट है, यू कैन स्किप दिस कंडीशन दैट इज स्टाफ डॉट ब्रांच नंबर इक्वल टू ब्रांच डॉट ब्रांच नंबर, इसको आप स्किप कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू राइट फॉर सिंप्लिसिटी यू आर राइटिंग इट विद द ज्वाइन ऑपरेशन इन सबस्क्रिप्ट, उसके सबस्क्रिप्ट में आएगा, फाइन। तो हियर वी आर सेइंग कि वी आर पोजीशन इक्वल टू मैनेजर, यहाँ पे पोजीशन मैनेजर है एंड सिटी लंदन है, ये कंडीशन सेम ही है हमारी जो प्रीवियस से फर्स्ट वन में थी। सो द आउटपुट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वेरी विल बी सेम। हमारे पास दोनों में से कोई भी क्वेरी यू आर रनिंग, वी विल गेट दोस एम्प्लॉयज वेयर पोजीशन इज मैनेजर एंड after that this query can be written in third way also. Which one is the third way, here we are saying where position equal to manager staff। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली रिट्रीव कर लिया, हमने पहले स्टाफ टेबल में से वो टपल्स रिट्रीव कर लिए, यहाँ पे ब्रांच जो पोजीशन है वो मैनेजर है, ठीक है, और फिर हमने रिट्रीव कर लिए कि वो ब्रांच टेबल में से ऑल दोज टपल्स वेयर सिटी इक्वल टू लंदन, फाइन। जब हमने रिट्रीव किया उसके बाद हमने ज्वाइन लगा दिया। अब कैन एनी स्टूडेंट टेल मी इनमें से सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी क्वेरी की होगी। आई हैव शोन यू 3 डिफरेंट क्वेरीज, विच क्वेरी विल बी हैविंग लीस्ट कॉस्ट, एनी स्टूडेंट फ्रॉम योर नॉलेज व्हाट डू यू थिंक। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट क्वेरी, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट है एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि सबसे ज्यादा कॉस्ट इसी क्वेरी की होगी, फाइन, क्योंकि दूसरी 2 क्वेरीज में क्या है, ज्वाइन यूज हो रखा है, फाइन। तो फर्स्ट आंसर, फर्स्ट द वेरी फॉरमोस्ट आंसर फ्रॉम योर साइड शुड बी, जिसपे कार्टेशियन प्रोडक्ट लगी है उस क्वेरी की कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी। तो फर्स्ट क्वेरी जो हमारी है इसमें हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज हो रही है, तो इट मींस दिस क्वेरी विल हैव मैक्सिमम कॉस्ट फर्स्ट क्वेरी की। नाउ देयर विल बी अ कंफ्यूजन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड क्वेरी, क्योंकि दोनों में ही ज्वाइन है, ठीक है, दोनों क्वेरीज में ज्वाइन यूज हो रहा है, तो इन दोनों क्वेरीज में से वी हैव टू चेक के कॉस्ट किस क्वेरी की लीस्ट होगी। अब कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, लेट मी शो यू। So note down on your rough notebooks or whatever notebook you have with you right now, उस पे नोट करो कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारे पास स्टाफ टेबल है उसमें 1000 टपल्स हैं। सो स्टाफ टेबल में हमारे पास हाउ मेनी रोज आर देयर, 1000 रोज। ब्रांच टेबल में हाउ मेनी रोज आर देयर, 50 रोज, फाइन। अब नेक्स्ट कंडीशन नोट करो कि उसमें जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स कितने हैं टोटल, 50 मैनेजर्स हैं। मींस अगर मैं ये क्वेरी राइट करूं, सेकंड में जो मैंने लिखा है पोजीशन इक्वल टू मैनेजर, तो मेरे पास कितने टपल्स आएंगे, 50 टपल्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं ये क्वेरी राइट करूं कि सिलेक्ट फ्रॉम ब्रांच वेयर ब्रांच नेम वेयर सिटी इक्वल टू लंदन, तो मेरे पास टोटल 5 टपल्स आएंगे, क्लियर।
तो मेरे पास कितने टपल्स आएंगे 5 टपल्स. सो राइट डाउन फ्यू assumptions. फर्स्ट assumption says कि स्टाफ में मेरे पास टोटल 1000 टपल्स हैं, ब्रांच में मेरे पास 50 टपल्स हैं, ठीक है. और जो मेरे पास मैनेजर है, ठीक है, जो मीन्स मैनेजर वाले टपल्स हैं वो मेरे पास 50 टपल्स हैं. और जो मेरे पास सिटी लंदन वाले हैं वो मेरे पास टोटल 5 है. क्लियर? हैव यू नोटेड डाउन these assumptions? I hope you have noted down. ठीक है. नाउ लेट अस स्विच टू द वेरी फर्स्ट क्वेरी. इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेरी हमारे पास क्या, इट सेज कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो whenever I perform a Cartesian product on staff and branch, ठीक है, तो मेरे पास कितने टपल्स आएंगे? कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी टपल्स विल बी रिट्रीव्ड? नाउ I was having 1000 टपल्स फॉर स्टाफ and 50 tuples for branch. So what will be the Cartesian product for this? Any student? What will be the result? It will be 1000 into 50. ठीक है, 1000 for this and 50 for this. So the result will be 1000 into 50 in this case. Clear? तो एक cost मेरे पास ये आ गई. First of all, we will be seeking for the results from the hard disk where the staff tuples are 1000. तो one read fetch वहां पे हो गया. Another read fetch will be 50 for branch. ठीक है, तो जो इनका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 1000 into 50. Now have a look at the numerical for this. It says firstly it calculates Cartesian product of staff and branch. Fine. So what is happening in this case? 1000 fetches for your staff, 50 fetches for branch. So what will be the total cost for this will be? It will be 1000 reads for staff and 50 reads for your branch. Exactly. So 1000 plus 50 cost has been already added to our query. Fine. So see the cost of the query. हमारी cost increase हो रही है whenever we are using Cartesian product. So be careful. You may be writing the query in SQL Server. You may be writing it in MySQL. You may be writing in PostgreSQL, or you may be writing in Oracle. किसी भी DBMS में आप query को write कर रहे हो सकते हो. But remember one thing, the cost of the query will remain same. क्योंकि अब आपका जो क्वेरी की कॉस्ट है वो आपके सिंटेक्स पे मैटर करती है कि आपने सिंटेक्स जो है, जो आपने लॉजिक डिफाइन किया है, वो लॉजिक क्या है. सो द क्वेरी कॉस्ट विल बी 1000 प्लस 50 डिस्क एक्सेसेस टू रीड द रिलेशंस. ठीक है, और वो कितने रिलेशन टपल्स क्रिएट कर देगा? 1000 into 50. So whenever you are fetching this record, it is giving us 1000 into 50 tuples. So after this, अब उसके बाद आप क्या करोगे? From here 1000 into 50 we have got from this place. Fine. And 1000 plus 50 cost from manager and for your branch relation manager, and for this relation that is your branch. तो दोनों पे जब आपने रीड किया उसके बाद you have to fetch from 1000 into 50, that is position manager. And how many position are having manager? Any student please unmute and tell me the answer. How many managers are there? How many managers are there? 50, ma'am. Exactly. And how many managers have branch city as London? 5. Exactly 5. तो मैं सबसे पहले मेरे पास क्या हुआ? मैंने 1000 रीड किए स्टाफ के लिए, 50 रीड किए ब्रांच के लिए. तो कितनी कॉस्ट आई? 1000 प्लस 50 रीड की. फाइन. उसके बाद जब मैंने उनको रीड किया, आई हैव फॉर्म्ड अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन दैट. So from that Cartesian product, what I got? 1000 into 50 tuples. Now I have 1000 into 50 tuples in my temporary database in buffer. Remember, ये tuples आपने end user को display नहीं किए अभी कहाँ पे है? In your buffer. Whenever we are processing any of the query, we got the temporary result in our buffer. You know this thing, na? All students already know. I hope all students are already knowing this. That these tuples are in buffer. Fine. So from those 1000 in 50, we have to read all 1000 into 50. After reading that 1000 into 50, we will apply the condition where position is manager and city equal to London. So हमारे 1000 into 50 reads दोबारा से करने पड़ेंगे. Now have a look at the
क्वेरी कॉस्ट. व्हाट इज दिस कॉस्ट? इट सेज 1000 प्लस 50. जब हमने क्वेरी को रीड किया, उसके बाद 1000 इंटू 50 हमारे पास क्या आए? टपल्स प्रोड्यूस हुए. अब उन 1050 को हम रीड करेंगे सो दैट हमें जो रिक्वायर्ड है वो रिजल्ट आ जाए. तो हमारे पास ये 1000 इंटू 50 क्या हो गया? इंटू 2. इंटू 2 क्यों हुआ? कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट इज इंटू 2? Do I need to open Notepad? I think I should open Notepad to make you understand this query in better way. Just give me 1 minute. I'm opening. Give me 1 minute only. You will better understand from this whenever I will be writing one by one, each and every step. Now, firstly, we assume we have staff. In this staff, how many tuples were there? 1000. After that, we considered which relation? Second one was your branch relation. Na? So in branch, we have a 50. Yeah, fine. So from that, whenever I am writing Cartesian product, so what Cartesian product I am doing? Branch into staff. Is it clear till this point? नाउ सी, हमने इनमें कार्टेशियन प्रोडक्ट Yes, परफॉर्म किया. फाइन. तो सबसे पहले जब मुझे इस रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना है, मैं स्टाफ के भी सारे टपल्स रीड करूंगी. 1 बाय 1 पूरा स्कैन होगा मेरा टेबल. तो मैंने कितने रीड किए? मैंने रीड किए 1000 फॉर स्टाफ. और फिर मैंने पूरे का पूरा ब्रांच टेबल रीड किया, क्योंकि जब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाना है, सपोज यू आर परफॉर्मिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो आप मैट्रिक्स की सारी वैल्यूज फर्स्ट मैट्रिक्स की रीड करते हो, फिर सेकंड मैट्रिक्स की रीड करते हो. आफ्टर दैट यू डू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट बेटा? Yes, ma'am. Obviously. So same thing will be happening in this case. Same thing will happen in this case. So Yes, ma'am. 1000 I have read from staff. 50 I have read from branch. Clear till this point? अब जब मैंने इसको रीड किया, उसके बाद मैंने क्या किया? कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट विल गिव अस 1000 into 50. Is it clear? Yes, is it clear now? Yes, ma'am. Okay. Now I have got the result of this Cartesian product, that is 1000 into 50. Now what I do? What I need to do next? Any student? What I need to do next? Multiply by 2. Why so? Why multiply by 2? 2 tuples है ना मैम, एक स्टाफ की और एक ब्रांच की. हाँ, because I have retrieved 1000 into 50 tuples, and now my task is to read that table, and after reading that table I will fetch 50 managers and position, and your next condition, that was city, was 5. So I have to read this again, so I do 2 into 50, और इन दोनों की जो cost आई है that will be added. So here I will perform addition in this case. So this will be the total cost of the query. That is, तो अगर इसका वैल्यू को कैलकुलेट करें, I will get 101050 disk access. Clear? So see, cost इस query की बहुत सा हाई आई है. अब अगर इसी query को मैं यूज करूं join के साथ, so what I need to do, जब the main difference will be whenever I am using Cartesian product, I am using 1000 into 50. Now when I will be using join, I will be doing 1000 plus 50. I will not be doing के 1000 into 50. Now suppose मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट नेम का. हम रियल लाइफ एग्जांपल में आ जाते हैं. अपने रियल लाइफ एग्जांपल में आपके कॉलेज का जीजीआई का एक डाटाबेस है. फाइन. जीजीआई की डेटाबेस में सपोज देयर आर 4000 स्टूडेंट्स तो इन टोटल. फाइन. उसके बाद में इफ आई से कि उसके बाद में मेरे पास आ गए सीएससी के स्टूडेंट्स, सपोज वो हैं 300. तो अगर मैं उसमें से सिर्फ सीएससी के स्टूडेंट्स फाइंड करूँ तो मैक्सिमम कितनी रोज आ सकती हैं? बेटा आई विल बाइंड अप विद इन 2 minutes. जस्ट मुझे इस क्वेरी का आंसर दे दो. 300 into 4000. बेटा मैक्सिमम तो 4000 ही आएंगी ना, इससे ज्यादा तो नहीं ना आ सकती. Yeah. क्योंकि जो 300 स्टूडेंट है सीएससी के वो हैं तो जीजीआई के स्टूडेंट ना, तो मैक्सिमम कितनी आ सकती हैं?
4000, तो अगर आप ज्वाइन यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम 4000 ही आएंगी। तो सिमिलरली अगर इसमें मैं ज्वाइन यूज करूं तो मेरे पास मैक्सिमम कितने आ जाएंगे 1000, क्योंकि 1000 मेरे पास स्टूडेंट में है, ठीक है, और 50 मेरे पास ब्रांच में थी, तो मैक्सिमम कितनी आएंगी 1000। तो वो 1000 आ गई, 1000 को आप रीड करोगे, यू विल गेट इनटू 2। उसके बाद में आप क्या करोगे, जो हमारे पास 1000 सर्च किया आपने मैनेजर के लिए, 50 आपने सर्च किया सिटी के लिए, तो वो आ गया आपका, वो कॉस्ट ऐड हो गई एंड यू गॉट ओनली 3050, ठीक है। लास्ट क्वेरी की कॉस्ट आप कैलकुलेट करके रखोगे, ठीक है, फॉर टुमारो, देन वी विल डिस्कस ऑन इट, ठीक है। लेट मी टेक योर स्क्रीनशॉट ऑफ योर अटेंडेंस वंस, आफ्टर दैट आई विल बाइंड अप। I will take your queries on WhatsApp group and in the chat box, but for now I am binding up from here.